everyone. So today we're going to continue from the last section we have discussed upon the Indian Contract Act, that was upon the performance of the contract. Okay. So when we're talking about the performance of the contract, we have talked about section 37 of the Indian Contract Act, under which we have studied like when any of the parties, मान लो you and me are the two parties, we are entering into the contract, and when we have done the promise to each other that we are going to perform the contract, when we have done the promise to each other that we are going to perform the contract according to the promised terms and conditions, then this is the basic duty of the promiser to fulfill the promise at any cost. And this is the duty of the promisee to pay the compensation amount, whatever amount has been promised. This is the duty of the promisee to compensate or to pay the promised amount to the promiser, and this is the duty of the promiser to fulfill the promise itself, that we have already discussed in the section 37 in the last class. Okay. Coming to the next part about section 38, we have understood about the effect of refusal to accept the offer of the performance. Okay. So when we're talking about the effect of the refusal to accept the offer of the performance, then we have understood that when we are talking about the acceptance of the offer, right? For example, I am offering you that are you agree to buy my home? मैं अपना घर बेच रही हूँ, क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हो? So if this is the offer from my side, this is up to you that you are going to accept the offer or not. Okay. So this is up to you कि आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. अगर चाहते हैं then you are giving me your consideration, you are giving me your consent to the offer. That means the acceptance to the offer that yes ma'am, I want to buy your house. Okay. So that is called the acceptance of the offer. And we have also discussed that if anyone is revoking the offer, फॉर एग्जाम्पल आई एम रिफ्यूजिंग द ऑफर ऑफ योर्स. फॉर एग्जाम्पल आपने ने आपको बोला कि क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं, आपने मुझे मना कर दिया. रिफ्यूजल मीन्स यू आर डिनाइंग समथिंग, यू आर सेइंग नो टू समथिंग. ओके. दैट मीन्स व्हेन यू आर सेइंग नो कि नहीं मैम मुझे घर खरीदना नहीं है, मैं आपका घर खरीदना नहीं चाहती हूँ, एट आफ्टर दैट मोमेंट. ओके. आफ्टर दैट मोमेंट आई गॉट माई राइट कि हाँ ठीक है आपने मना कर दिया, अब ये मेरा राइट है, अब ये मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मैं और किसको घर बेचूं. राइट. दिस इज अप टू मी कि आपने मना करने के बाद मैं किसको ये घर बेचना चाहूंगी. दिस इज कंप्लीटली अप टू मी. राइट. सो when we're talking about the refusal of the acceptance of the performance, it indicates that the promisor is not responsible for the non-performance itself. That means the example we just discussed, that I told you that I have given you an offer that do you want to buy my home? You said ki no ma'am, I don't want to buy. Right? You denied me. You said you refused me. So after the acceptance of your refusal, when I heard that yes, you are denying it, you are saying no to me, आफ्टर हियरिंग योर नो, व्हाट आई डिसाइडेड कि ओके फाइन, आपने तो मना कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, दूसरे किसी को बेच दूंगा. आई सोल्ड द हाउस टू समवन एल्स, मैंने और किसी को घर बेच दिया. राइट. यहाँ पे यू एंड मी आर नॉट एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. हम दोनों यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने मना करने के बाद द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, दैट हैज बीन एंडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. राइट. सो यहाँ पे आफ्टर सम डेज जब आपको पता चलता है कि मैंने अपना घर और किसी को बेच चुकी हूँ, यू आर फाइलिंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी कि मैंने आपको साथ धोखा कर दिया. या फिर यू आर फाइलिंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी कि मैम हाउ कुड यू सेल द हाउस टू समवन एल्स, दिस इज कम्प्लीटली अनएथिकल और आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरे अगेंस्ट कहाँ पे भी कंप्लेन रेज कर रहे हो. सो इफ आई आस्क यू this kind of activity, if I am telling you, is it authentic or valid in nature? The answer is no. This is totally illegal, right? And most importantly,
I am the promisor and you are the promisee, right? I am the promiser who has promised to sell the house. And here I am not responsible for any kind of the non-performance of the contract. Here I am not liable. I am not responsible that आपने घर नहीं लिया, उसके बदले और किसी ने घर खरीद रहा, क्या हुआ? आई एम टोटली इररेस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मेरा उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. एंड आई डोंट हैव एनी ड्यूटी टू फुलफिल माई प्रॉमिस टू यू बिकॉज यू हैव डिनाइड योर सेल्फ. यू हैव डिनाइड द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर. आपने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है. क्लियर? तो ये पढ़ा था हमने सेक्शन 38 के अंदर. Today we are going to continue from section 39 onwards. So under section 39 it has been told that effect of refusal of party to perform promise wholly. What does it speaks? When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirely, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. Okay. So here what does it speaks? यहाँ पे ये बोला जाता है when a party to the contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirely. That means मान लो I am the promiser, you are the promisee. Okay. You and me has entered into the contract जहाँ पे हम दोनों के बीच में ये contract हुआ है that I have promised to sell you 10,000 10,000 एनी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट ने ले लीजिए. मान लो कि कोई किसी भी तरह का आपका कंप्यूटर का इंस्ट्रूमेंट है. ओके, दैट कॉस्ट 10,000 ऑफ द रुपीज. तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो मैं आपको 10,000 रुपए में बेचना चाहती हूँ या फिर आप मुझसे खरीदना चाहते हैं. एंड देयर इज ए म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी दैट यस आई एम गोइंग टू सेल यू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड यू आर गोइंग टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड उसी के बीच में पैसा कितने का आया? 10,000 रुपीज. आई एम गोइंग टू सेल यू द प्रोडक्ट एंड उसी के बदले आप मुझे कितना दोगे? 10,000 दोगे. दिस इज द डील बिटवीन यू एंड मी, राइट? यस. So this is the deal between you and me that you are going to transfer me the product and in the return I am going to pay you 10,000 of the rupees. Okay. But what is happening that before the time of the performance of the contract to perform करने से पहले I am facing certain kind of the situations. मेरे को कुछ दिक्कत आता है जहाँ पे मेरा दुकान में कोई नुकसान हो जाता है या फिर मेरा सामान कहीं खो जाता है. सो व्हाट हैपेंस दैट आई एम अनेबल टू डिलीवर यू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और एल्स आई एम अनेबल टू परफॉर्म माय ड्यूटी फुली. कंप्यूटर का इंस्ट्रूमेंट के बाद मैंने बोला था, मान लो आप पूरा कंप्यूटर का एक सेट मुझसे मंगवाया था जिसका कॉस्ट 30,000 या 40,000 है. ओके. तो मैंने यहाँ पे आपको बोलती हूँ आफ्टर द लॉस ऑफ माई शॉप कि देखो यार मेरे पास अभी कंप्यूटर का सारा इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ बस अभी के लिए आपको आधा सामान डिलीवर कर देती हूँ एंड दैट विल कॉस्ट यू 15,000. वो मैं कर पाऊंगी. बट ड्यू टू सर्टन काइंड ऑफ द लॉसेस और सर्टन काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस आई एम अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट फुली. मैं पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ एंड आई एम अनेबल टू पे यू द फुल अमाउंट ऑफ 30,000 रुपीज. मैं आपको पूरा पैसा अभी नहीं दे पाऊंगी. ओके. सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू. दिस इज व्हाट यू अंडरस्टूड दैट हियर आई एम अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे दो तरीका हो सकता है. आइदर मैं ये बोलती हूँ कि मैं पूरी तरह से आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकती, या फिर मैं आपको दूसरा चीज बोलती हूँ दैट मैं आधा मतलब आई एम एबल टू कंडक्ट द कॉन्ट्रैक्ट अप टू द हाफ एक्सटेंट, नॉट फुली. दैट मीन्स पहला मैं आपको ये बोल सकती कि नहीं, जिस चीज को लेकर हम दोनों के बीच में डील हुआ था या फिर द थिंग फॉर व्हिच वी हैव डन द डील, आई एम टोटली अनेबल टू डिलीवर यू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. मैं आपको प्रोडक्ट कहीं से भी दे नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास अभी ना पैसा है ना वो प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको नहीं दे पाऊंगी.
अगर मैं ये चीज बोल के मेरा हाथ साफ कर लेती हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट से खुद को विड्रॉ कर लेती हूँ कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं दे पाऊंगी। पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा नहीं तो क्या होगा कि जहां पे मैं आपको ये बोलती हूँ कि देखो यार, अब मेरे पास आधा सामान है, आप मुझसे आधा सामान ले जाओ, आधा सामान का पैसा दे दो, बाकी आधा सामान जब मेरे पास आ जाएगा आई एम गोइंग टू पे यू। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर, हियर इज द सिचुएशन जहां पे ये होता है कि when there is the non-performance of the contract or the half performance of the contract, this is the discretion of the promisee, that if the promisee wants, he or she can enter into the ending of the contract. Okay, that means यहाँ पे promiser कौन है? मैं हूं। मैंने क्या बोला कि सामान देना मेरा ड्यूटी था, बट अब मैं सामान डिलीवर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत चल रहा है। ओके, सो द क्वेश्चन अराइजेस, हु इज द promisee over here? The promisee is you. आपने यहाँ पे promisee बन गए। ओके, जहां पे you have the discretion that आप मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, आधा सामान देने का तो बात कर ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आधा सामान रख लेते हैं, बाकी आधा सामान जब इसके आप पास आ जाएगा वो मुझे दे देगा, राइट। सो यहाँ पे इफ you are okay or you are agreeing for the half performance of the contract, then that is valid, that is not void. Okay, but if you are totally, if your partner, uh, if your business partner who with whom you are doing the business, or to who has been promised to you to deliver the particular product or particular material, अगर वो पूरी तरह से मना कर देता है या मना कर देती है कि नहीं मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, then what happens? Ultimately this leads to the conclusion of the contract. Ultimately this leads to the ending of a contract. वहां पे contract end ही हो जाता है, right? So this is about the performance of the contract. Okay, so यहाँ पे you have the discretion in case of the half performance of the contract, that if you want you can conclude the contract, you can end the contract. But in the first situation जहां पे there is the non performance at a full rate, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसने मना करके चला गया, उसने अपना परफॉर्मेंस किया ही नहीं। अगर सिचुएशन फेवरेबल है, इफ यू हैव द वैलिड रीजन कि हाँ ये सिचुएशन को समझा जा सकता है, देन ओनली द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द रिलीफ। एंड अगर ऐसा लगता है कि उस इंसान ने जिसने आपको प्रॉमिस किया था जानबूझ के दैट पर्सन हैज ट्राइड टू हार्म यू, उस इंसान ने जानबूझ के ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है दैट यू मतलब दैट पर्सन हैज नोइंगली ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, उन्होंने अपना सामान का डिलीवरी ना करके जो भी गलती की है, दैट इज द एक्ट नोइंगली, वो जानबूझ के ही ऐसा किया है, दैट इज जस्ट वाज नॉट ए मिस्टेक और दैट वाज जस्ट नॉट बाय द सर्कमस्टेंसेस। अगर ये सीन होता है देन देयर विल बी सेपरेट पनिशमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। ओके, so यहाँ पे we will be looking upon certain illustration towards, that's why. Okay, the first condition, there is a bar. Okay, मान लीजिए there is a night bar जहाँ पे लोग आते हैं, people dances, people just do have the fun, right? So there are that is a bar. Okay, so वहाँ पे क्या होता है, there is a singer who has been appointed to sing in the bar, जिसको बार में गाना गाने के लिए अपॉइंट किया गया है। एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द सिंगर इज लायबल और इज रिस्पॉन्सिबल टू कम टू द बार डेली बेसिस, वो हर रोज बार को आएगा, विल गिव हिज परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज एंड अपना परफॉर्मेंस देगा। एंड फॉर द ईच नाइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हर रात का परफॉर्मेंस के लिए द सिंगर इज गोइंग टू गेट 200 ऑफ द रुपीज। हर रात का परफॉर्मेंस के लिए उसको कितना मिलेगा? 200 रुपया मिलेगा। दिस इज द कंडीशन बिटवीन द सिंगर
and the organizer or the bar manager. Okay. And दूसरा चीज क्या बोला गया है कि you are going to perform the contract or you are going to perform your sing the song you are going to do the performance of your music in the bar, that is only at the night time and that too from Monday to Friday. Okay, that is your terms and conditions of the contract. क्या हो गया, ये हुआ कि मंडे से फ्राइडे तक आप हर रोज रात को बाहर आएंगे, गाना गाएंगे एंड अपना पैसा लेके जाएंगे. आपका हर रोज का पैसा कितना है, 200 रुपया. एंड मंडे टू फ्राइडे के बीच में आप किसी भी दिन स्किप नहीं कर सकते. दिस इज द मेन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बार इज स्पेसिफिकली नोन फॉर द म्यूजिक, राइट. तो यहाँ पे म्यूजिक का इतना ही वैल्यू है, तो अगर आप एक दिन स्किप कर लोगे, वी आर गोइंग टू फेस ए ह्यूज लॉस. ओके, सो यू कैन नॉट स्किप द म्यूजिक एट एनी नाइट इन बिटवीन मंडे टू फ्राइडे. तो ये डील हो गया. बट मान लीजिए सिंगर ने क्या किया, जानबूझ के मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, थर्सडे के दिन उसने स्किप कर दिया. And the skip was not due to any kind of the health reason or any kind of the medical reason, और ऐसा कुछ नहीं था. He just did that with an intention. मतलब उसी को ऐसे ही मन नहीं किया तो उसने स्किप कर दिया, इंटेंशनली उसने ऐसा कुछ एक्टिविटी किया है, राइट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटेंशन, इंटेंशनली अगर किसी ने अपना कंडीशन ब्रीच करता है इंटेंशनली जानबूझ के, even if the person has the sufficient opportunity to perform the contract, if in that condition the party is breaching the promise, the party is breaching the terms and conditions of the contract, then what happens? Then the answer is simple. If the party is breaching the terms of the contract, then this is the responsibility of the promisee, this is the discretion of the promisee to end into the contract, to reach the end of the contract. This is the duty of the promisee. क्या है, वो जब चाहे जैसा चाहे कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे टर्मिनेट कर सकता है या कर सकती है. अगर मेरे बार में ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहां पे आई एम हायरिंग ए सिंगर एंड दैट सिंगर इज कमिंग अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द बार, द सिंगर शुड कम फ्रॉम इवनिंग 5 to night 10 या 11. Okay, so that is the condition over here. But what is happening that musician is coming continuously from Monday, Tuesday, Wednesday, and at the date of the Thursday night that person gets disappeared, and again he is coming on Friday. So when that person is coming on Friday, this is my complete discretion, ये मेरा right है to decide that I should let the singer continue in the bar or not. Okay, 3 दिन का कंटिन्यूएशन के बाद उसने जो डिसअपियर हुआ था, उसने जो चला गया था, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग एन एंड. कब आता है, जब इट इज द thought it is the duty of the promisee or the promisee feels that the contract is no more, should not be continued. Okay, so what happens if the promiser ends the contract or if the promiser knowingly breaches the nature of the contract? So this is the discretion of the promisee to decide that the promisee wants to continue the contract or not. Okay, ये गया आपका पहला चीज. दूसरा चीज क्या आया, मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे उन्होंने 3 दिन गाना गाया. चौथा दिन ऑन द डे ऑफ द फ्राइडे दैट पर्सन वाज एब्सेंट इन द ऑफिस. उसने क्या किया, ऑफिस ही नहीं आया चौथा दिन. ओके, फिर मान लीजिए सॉरी मतलब आई बाय मिस्टेक टोल्ड द ऑफिस, वो पर्सन बाहर ही नहीं आया गाना गाने. एंड ऑन द डे 5, ओके, चौथा दिन नहीं आया, 5वां दिन फिर से आया and you allowed that person to sing, आपने उसको गाना गाने के लिए अलाउ भी कर दिया, and that person also sing and did a very good performance. So यहाँ पे जो सिचुएशन आता है, now after the day 6 can you terminate the contract of that person with you? The answer is no. Okay, but if it would be Thursday,
then can you terminate the contract of that person? Tell me. That means I am asking that if the person who is coming Monday, Tuesday, Wednesday, and skipping at the day of Thursday, if if the day is Thursday and at that day of Thursday the promisee wants to terminate the contract, can he terminate the contract? The answer is yes, he can terminate the contract. But just twist the situation जहाँ पे the person is performing on Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday he is skipping and Friday again he is performing the contract. So in that case, my question arises that is the promisee uh, capable to terminate the contract? The answer is no. Because after the absence of one day, you have again accepted her service. एक दिन का absent के बाद भी आपने उनका सर्विस एक्सेप्ट किया है. And that is why this is said that effect of refusal of party to perform wholly. That should be eventually transparent in nature. Okay, that means under section 39, moreover, it speaks that if you are allowing someone to continue the contract up to next and next and next, even after the breach of the contract तो उसने breach कर दिया, contract का terms and condition को continue नहीं किया, but even after that you are allowing that person to continue with the contract, that means you have accepted that person even if that person has not worked for one day. Okay, clear? And in that condition you cannot terminate your contract, but in the condition जहाँ पे आप genuine हो, you can terminate the contract. Okay, sorry for the interruption, I have got a call. Okay, so I was telling you about the section 39 of the Indian Contract Act, जहाँ पे मैंने ये बोला कि if there is a bar and there is a singer who has got the contract to sing at the bar at a daily basis and take the rupees of the 200 rupees upon the as per the daily performance basis, and what happens that after the continuation performance of Monday, Tuesday, Wednesday, the person skips to be performed on Thursday. Okay, and again he is coming to perform on Friday. So before the performance of the Friday performance, this is the responsibility of the promisee, that means the bar owner, to decide whether he should terminate the contract with the singer because he has breached the condition, जहाँ पे ये बोला गया था कि उसको हर रोज गाना है, but उसने ये condition breach किया है, तो उसके साथ कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट रखना है या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, ये डिसीजन किसका रहेगा? द प्रोमिसी, दैट मीन्स द बार ओनर, उसका डिसीजन रहेगा. बट अगर उन्होंने उसको थर्सडे स्किप करने के बाद भी फ्राइडे फिर से गाने के लिए अलाउ कर दिया, इफ द पर्सन इज अगेन परफॉर्मिंग ऑन फ्राइडे, देन इफ द बार ओनर इज टेलिंग कि देखो तुमने तो थर्सडे का दिन परफॉर्म नहीं किया था, तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टर्मिनेट कर रहे हैं, देन दैट इज इलीगल. क्योंकि इवन इफ यू न्यू कि उन्होंने थर्सडे के दिन परफॉर्म नहीं किया था, फिर भी आपने उनको फ्राइडे में परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया था कि नहीं? बिल्कुल किया था. सो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, बट आपने उनसे कॉम्पेंसेशन ले सकते हैं कि हाँ ठीक है, ऑन द डे ऑफ थर्सडे हमने जो भी स्किप किया आपने, और आपकी वजह से हमको मान लो कि 100 रुपए का लॉस हुआ है या 200 रुपए या 500 रुपए का लॉस हुआ है, यू कॉम्पेंसेट दैट अमाउंट, आप उस अमाउंट का भरपाई करो, वो हो सकता है. क्लियर? देन कमिंग टू सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे ये बोलता है पर्सन बाय हुम द प्रॉमिस इज परफॉर्म्ड. ओके, यहाँ पे ये बोलता है कि पर्सन बाय हुम द प्रॉमिस इज परफॉर्म्ड. हु इज द पर्सन बाय हुम द प्रॉमिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज गेटिंग परफॉर्म्ड? ओके, so what does the section speaks?
If it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. In other cases, the promiser or his representative may employ a competent person to perform it. Okay. So what does it mean? If it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to the contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. In other cases, the promiser or his representatives may employ a competent person to perform it. So यहाँ पे सिंपल सी बात बोला गया है, बहुत आसान है कि मान लो देर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड मी, हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहां पे ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस रखा गया है दैट आई एम द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू डू माई परफॉर्मेंस। मेरे अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट में और कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता है, एंड इन दैट कंडीशन आई शुड कंप्लीट माई प्रॉमिस ऑफ द परफॉर्मेंस। मान लीजिए आई एम ए ओडिसी डांसर, ओके, मैं एक डांसर हूँ एंड यहाँ पे आई हैव टेकन द अमाउंट ऑफ 20,000 फ्रॉम यू, मैंने आपसे 20,000 का पैसा लिया है, जहाँ पे मेरे को आपने ये बोला कि आप हमारे लिए एक दिन का स्टेज का डांस परफॉर्मेंस करो एंड उसी के बदले यू आर पेइंग में 20,000 ऑफ द रुपीज। सो व्हाट आई डिड, मैंने आपसे पैसा ले लिया, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग टू परफॉर्म द डांस फॉर यू एंड इन रिटर्न आई एम टेकिंग द 20,000 ऑफ द रुपीज। ओके, तो यहाँ पे द अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज दैट इज इन रिटर्न ऑफ माई डांस परफॉर्मेंस। यस, राइट, मैंने 20,000 क्यों लिया है? डांस करने के लिए लिया है, माई परफॉर्मेंस के लिए लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे खुद परफॉर्म करने का बात आई, क्या मैं और किसी को अपने लिए परफॉर्म करने के लिए छोड़ सकती हूँ? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अरे नहीं मेरा तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तो मेरा बेटा जो है वो भी एक डांसर है, मेरे बेटे को ही बुला लो, मेरे बदले मेरे बेटे डांस कर देगा। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज यहाँ पे द सीन इज प्रेटी क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है कि हाँ मुझे परफॉर्मेंस देना है, तो यहाँ पे जब परफॉर्मेंस का बारी आएगी ना, तभी मुझे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, मेरे लिए और कोई जो परफॉर्म नहीं कर सकता या नहीं कर सकती है। मैं अपना बेटे या बेटी को भेज के ये नहीं बोल सकती कि बेटा जाओ आज मेरा ये शो है, आप वहां पे परफॉर्म करके आ जाओ, ये बात नहीं चलेगा। समझ में आ गया? दूसरा चीज क्या है, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा किया जा सकता है, मान लो आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू सेंड यू द गुड्स ऑफ सर्टेन पेमेंट। मेरा फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग ए शॉप where I am selling the instruments of the computer, medical instruments, okay, just like the medico stops I am selling in, I am just the medical stops I am selling in the shop, okay. So you have done a contract with me under which we have promised that you are paying me the amount of 50,000 rupees, and in the return of that 50,000 rupees, I am going to sell you those medical stuffs, those medical instruments. Okay. But here the condition lies that if it comes to the point of the performance of the contract, here the condition is to perform the contract, to deliver the goods of the instruments to your particular hospital. आपके हॉस्पिटल को यहाँ पे ये जो स्टॉप से ये जो मेडिकल का इंस्ट्रूमेंट से उसी को डिलीवरी करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे ही खुद जाके डिलीवरी करना पड़ेगा, ऐसा मैंने नहीं बोला, राइट। मैंने ये बोला कि मैं डिलीवरी करवा दूंगी, राइट, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे खुद जाके डिलीवरी करना है। So this is my responsibility that I am going to perform the contract by alone or I am going to make the contract through someone.
ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकती हूँ या फिर किसी के थ्रू भी वो परफॉर्मेंस करवा सकती हूँ. दैट पर्सन might be my representative. There is another example you can take. uh, I am having a shop where I do the home services. मतलब I am an electrician who do checks the electricity of the homes. अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी पे कोई दिक्कत है तो मैं उसी को ठीक कर देती हूँ. तो आपने मुझे 5,000 रुपए दिया और आपने बोला कि देखो मैम, हमारा घर पे ये इलेक्ट्रिसिटी का काम है, तो आप कर दोगे क्या? मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी ठीक करवा दूंगी, मैं कर दूंगी, मुझे काम आता है. तो यहाँ पे इट डिपेंड्स अपन मी. आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी ठीक होना जरूरी है कि नहीं? राइट. तो यहाँ पे अगर मेरा मन करेगा तो मैं खुद जाके ठीक कर दूंगी. अगर मेरा मन नहीं करेगा खुद जाने का या फिर मैं कहीं पे बिजी रह गई तो मैं क्या करूंगी? और किसी को भेज दूंगी. आई हैव अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो. आई हैव माई स्टूडेंट्स who is also has the expertise in the electricity stuffs. उनको पता है कि काम कैसे होता है, कैसे करना है, तो मैं उनको भेज दूंगी कि भाई आप जाओ, ये यही एड्रेस है, इसी घर पे जाके काम करके आ जाओ. राइट. So this contract can be performed by myself or another option by my representatives. This is the complete discretion of the mind that I want to perform the contract by myself or I want to perform the contract by my representatives. That is the complete discretion of mind. Okay, clear? The next point, effect of accepting performance from the third person. And this comes under section 41 of the Indian Contract Act, which speaks that when a promise accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser. What does it mean? That means there is a condition I am just giving you. Let's understand it through an example only, because it is a easy section but can be clearly understood by the particular examples. मान लो you have appointed me to make a portrait of yours. आपका एक ऑयल का पोर्ट्रेट बनाना है. आई एम ए पेंटर एंड यू हैव हायर्ड मी. आपने मुझे आपका फोटो भेजा और बोला कि मैम मुझे एग्जैक्ट इसी तरह का ऑयल का पोर्ट्रेट बना के भेज दीजिएगा. मैंने बोला कि ठीक है, कितना लोगे, कितना दोगे? तो आपने बोला कि मैम आई एम रेडी टू पे यू 5,000 of the rupees in exchange of the oil portrait. Right. So when the point comes that you are agreeing to pay me the amount of 5,000 rupees and I am agreeing to sell you that particular portrait in exchange of the 5,000 rupees. Right. The scene is pretty clear over here. आपने मुझे 5,000 दोगे और 5,000 के बदले में आपको ऑयल का पोर्ट्रेट बना के भेज दूंगी. राइट. बट मान लीजिए आई एम सिक, मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरा तबीयत बिगड़ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ दिक्कत आ गया मेरे को, तो मैं आपका पोर्ट्रेट नहीं बना पाई. मैंने क्या किया? आई हैव माई स्टूडेंट हु इज ऑल्सो गुड एट पोर्ट्रेट मेकिंग एंड ऑल. सो व्हाट आई डिड, आई कॉल्ड यू एंड मैंने आपको बोला कि देखिए मैम, आई प्रॉमिस्ड यू दैट आई एम गोइंग टू मेक द पोर्ट्रेट ऑफ योर्स बाय माई सेल्फ, बट देर इज सर्टन इश्यूज हैज कम ओवर हियर. कुछ दिक्कत आ गई है, तो मैं अपने पोर्ट्रेट खुद, मैं आपका पोर्ट्रेट जो है वो बना नहीं पा रही हूँ, मैं आपका पेंट नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू हायर समवन फॉर यू. मैंने आपका ये काम के लिए और किसी को हायर कर रहा हूँ, तो उन्होंने आपका काम कर देंगे. तो आपने बोला कि ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं, हमको बस पोर्ट्रेट चाहिए, आप खुद करो या किसी को थ्रू करवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बस करवा के हमको भेज दो. तो मैंने क्या किया, आई अपॉइंटेड माई स्टूडेंट जो कि एक्सपर्टाइज है जिसका का ये काम पे. तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, ऐसा ऐसा सीन है, तुम जाओ थोड़ा एक पोर्ट्रेट बना के ले आओ उनका. तो उसने क्या किया, ही मेड द पोर्ट्रेट बाय हिमसेल्फ. उसने आपका पोर्ट्रेट बनाया, आपका ऑयल पेंट बनाया, फिर बना के क्या किया, आपको आपके पास लेके देके आया. आपने क्या किया, आपके पास वो जो ऑयल का जो पेंट है वो पहुंचा, आपने उसी को खोला, आपने बोला कि यार बहुत अच्छा है, आप तो बनाए हैं, बहुत बढ़िया है. आप खुश हो गए, आपने अपना जो भी 5,000 रुपीज का डील हुई थी, आपने मुझे 5,000 रुपया भी दे दिए, एंड मेरा जो मतलब स्टूडेंट जो आपके पास गया था ये पेंट लेके, आप उनसे ये पेंटिंग रख भी लिए.
बट मान लो आफ्टर कीपिंग द पेंटिंग आपको वो पेंटिंग में ना खूबियां दिखने लग गई। आपको लगा कि यार ये थोड़ा सा सही हो सकता था, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे नाक थोड़ा सा सीधी हो सकता था, आंखें थोड़ा सा लंबा हो सकता था, एंड द स्किन कलर शुड बी लिटिल डिफरेंट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है और भी अच्छा हो सकता था। तो आपने क्या किया, मुझे फिर से कॉल लगाया और मुझे ये बोलने लगे कि मैम अब मेरे को मेरा पैसा वापस दो। मैंने तो या व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, या सो सडनली आपके दिमाग में कैसा आया कि चलो, आपको लगा कि नहीं यार इसका नाक थोड़ा टेढ़ी हो सकता है, आंखें थोड़ा सा सही हो सकता है, सो यू फेल्ट दैट द पिक्चर माइट बी मच बेटर। तो आपने क्या किया, मुझे फिर से कॉल लगाया और बोला कि नहीं मैम अब मेरे को ये पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, ये पिक्चर अभी मेरे को नहीं चाहिए। आप क्या कीजिए ना, इसी को वापस ले जाइए और मेरे को मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो यहाँ पे इफ यू आर आस्किंग मी टू टेक बैक दैट पर्टिकुलर पिक्चर, टू टेक बैक दैट पर्टिकुलर ऑयल पेंट, इज इट एक्सेप्टेबल? क्या अभी आप कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं? राइट, यहाँ पे ये बोला गया है ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। ओके, दैट मीन्स अगर आप एक बार एक्सेप्ट कर लिए ना, आप दोबारा इसी को इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैंने आपको कॉल करके बोला था कि देखिए मैम मेरा तबीयत खराब है, मैं आपका इमेज है, आपका जो ऑयल पेंट है मैं नहीं बना पा रही हूँ, एंड व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम अपॉइंटिंग माय स्टूडेंट टू मेक इट, मैं नहीं बना रही हूँ, मेरा स्टूडेंट ये पोर्ट्रेट को बना रहा है। आपने तभी हाँ बोला था। मेरा स्टूडेंट वो पोर्ट्रेट बना के उसको आपके घर पे लेके डिलीवरी किया, आपने उसको भी एक्सेप्ट किया। एंड उसी के बाद व्हेन द पॉइंट कम्स कि मैंने आपको ये बात बोला कि चलो मेरे को मेरा पैसा दे दो, आपने मेरे को उस पोर्ट्रेट है उस इमेज का जो 5,000 रुपीज है वो भी दे दिया। तो एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ विदाउट मी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसी के बीच में हुआ था, मी एंड यू, हम दोनों के बीच में हुआ था, but my student who has performed the contract, who has made the image, who has made the portrait, he is the third person, right? But you have accepted the work of the third person itself, आपने जो तीसरा इंसान है उसी का जो आर्ट है उसी को आपने एक्सेप्ट कर लिया, you have accepted that, बट नाउ आफ्टर द एक्सेप्टेंस यू आर डिनाइंग, आप बोल रहे कि नहीं अब मेरे को नहीं लेना है, आप वापस ले जाइए। क्या ये इनफोर्सेबल है? द आंसर इज नो। once you have accepted the performance of the third person in a contract, जहां पे contract पे ये मेंशन है कि the third person's entrance is not allowed, यहाँ पे contract जो है आपको और मेरे बीच में है, बट मैंने आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है आप और मेरे बीच में है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट देखो आई एम अनेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, आर यू एग्री, आर यू ओके दैट आई एम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बाय द थर्ड पर्सन, देन यू आर एग्रीइंग इनटू इट एंड यू आर अलाउइंग मी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट via the third person. And yes, remember, once you are accepting the performance of the contract by the third person, then you don't have any right to deny that particular performance. You cannot deny the particular performance once you are accepting it. इमेज या फोटो एक्सेप्ट करने के बाद आप दोबारा उसी को वापस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट मी, यू कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट मी फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर एनी काइंड ऑफ द कंप्लेंट की या फिर द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपरली, आई एम नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, आई वांट माय मनी बैक। आप किसी भी तरह का क्लेम मेरे सामने अब नहीं कर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ द complaint or legal action against me. And that is all what speaks about section 41 of the Indian Contract Act. Okay. And coming to the next point, section 42, it speaks about the devolution of the joint liability. That means when we are talking about the promisor and the promisee, it speaks about the joint promisors. मान लीजिए we are a group of 3 people, we are 3 friends, okay, and we are promising someone to pay the amount of 10,000 rupees. हम तीनों ने मिलके किसी को 10,000 रुपए का देने का प्रॉमिस कर लिए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द जॉइंट प्रॉमिस। यहाँ पे आप,
मैं और मेरा दोस्त, हम तीन जो लोग हैं ना, जो कि 10,000 रुपया देने का प्रॉमिस एक साथ कर रहे हैं, देन वी थ्री कॉल्ड एज द जॉइंट प्रॉमिसर। क्लियर? हम दोनों, हमको क्या बोला जाएगा? विल बी कॉल्ड एज द जॉइंट प्रॉमिसर इटसेल्फ। क्लियर? Then from section 42 onwards, about the joint liability of the joint promisors, we are continuing from the next class itself. So we are terminating the class over here. If you have any doubt, you can just ask me in the next class. So I'm ending the class over here, meeting you at the next class after 10 minutes. Okay. Thank you.